तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का आपका योर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन PYQ. And let's see what the PYQ is. So this is the PYQ that we are going to solve, and let's read this first, then we will solve it. And you will find that this PYQ is mainly, the main concept of this PYQ is belongs to capacitor, right? But because in some questions there is things to find current in the circuit, that's why I have taken it here. Otherwise it is purely your capacitor question. Like 80% of the concept is from capacitor, right? So you have to learn this concept. And also capacitor chapter is very important. If you see the second chapter of this class 12th NCERT part 2, you will see that 20% of the weightage is other chapters in electric potential and capacitance. I am talking electric potential and capacitance. 20% of weightage is for electric potential, where potential and potential energy is there, and 80% chapters belongs to capacitor, right? So that's why it is very important to learn this concept. And capacitor previous year questions are also in like weightage in the previous year is very high for capacitor. So that's why it is very important topic. Now let's solve this question first. So first of all, what you have to do is, let's read. A circuit consisting of a capacitor, a resistor or resistance, and an ideal battery of EMF V, and as shown in the figure, इज नोन एज RC सर्किट, राइट? तो आपका RC सर्किट होता है जब आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, राइट? तो उसके बाद क्या है, एज सुन एज द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय क्लोजिंग S1 क्लोज करने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्या कौन सा सर्किट कंप्लीट हो जाता है? ये वाला सर्किट देखो, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है आपका, राइट? S1 को क्लोज करने से। अब आपका S1 क्लोज है एंड कीपिंग S2 ओपन, चार्जिंग बिगिंस टू फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड द बैटरी। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है और द बैटरी के बीच में, राइट? तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली द पोटेंशियल डिफरेंस VC Q/C अक्रॉस द कैपेसिटर ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे चार्ज आपका फ्लो होगा विद टाइम, जब तक ये टाइम इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ अ स्टडी स्टेट, जब तक ये पहुंचेगा तब तक आपका इसका चार्ज बढ़ते जाएगा और इसके बीच, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ते जाएगा। कब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा? जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये V, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके इक्वल यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता है, तब तक ये पोटेंशियल बढ़ते रहेगा यहाँ से स्टेडी स्टेट तक, राइट? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, equal potential difference across the battery, the capacitor is fully charged and Q is equal to VC. During this process of charging, the charge Q on the capacitor changes with time t as Q is equal to Q1 minus E minus T by RC, right? तो ऐसे आपका चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्यों दिया है? क्योंकि जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे देखो नीचे दिया भी हुआ है कि डिफ्रेंशिएट करके आप करंट निकालो। तो जैसे ही आप इसको dQ/dt डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है Q माइनस E माइनस टी बाई आर सी, यहाँ पे बाहर Q होगा, यहाँ पर अंदर 1 होगा, बाई dt करोगे तो आपका ये करंट दे देगा, करंट एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो ये आपका यहाँ पे आपका आएगा यहाँ से, राइट? तो इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या नीडेड है इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पता होना चाहिए कि द Q दैट द कैपेसिटर विल गेट एट अ स्टेडी स्टेट इज C into V, राइट? आफ्टर दैट, इन द सेकेंड concept that we have is RC circuit. RC, so RC, the value of RC is V by A, R is V by A, resistance is V by A, and the unit of for C, we know formula for C is Q by V, right? So V by A and Q by V. Now you have to find the SI unit for this RC, right? So the RC unit is second, and the dimension you can write it as M naught L naught T A naught, right? Now at the three concept that we need is when in the like current loop, when there is a capacitor
एट स्टडी स्टेट क्या होगा कि आपका Q इज इक्वल टू सी इंटू वी हो जाएगा। चार्ज T इज इक्वल टू जीरो पे Q इज इक्वल टू जीरो होगा, और जैसे जैसे टाइम एट स्टडी स्टेट आपका चला जाएगा, आपका Q इज इक्वल टू Q हो जाएगा, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट है। देन आपका फोर्थ में क्या है कि स्टेडी स्टेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन लूप बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। तो अगर आपका स्टेडी स्टेट जो कैपेसिटर आ गया है, मीन्स जो Q आपका कैपेसिटर पहुंच गया है चार्ज, अब उसे फुल्ली चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया है। तो अब जो आपका जो वो कैपेसिटर आप कनेक्ट कर दो, जैसे अगर आप ये वाला आप लाइन बनाओ, ये वाला आप अगर बनाओ, ये वाला राइट, आई थिंक इट इज नॉट विजुअल टू यू। ये वाला जो सर्किट आप कनेक्ट करो, ये S2 जब आप क्लोज करोगे, तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो आप इसे कनेक्ट करोगे, तो ये वर्क कैसे करेगा, इट विल वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट, जबकि यहाँ पे बैटरी भी नहीं कनेक्टेड है तब पर भी। तो दैट व्हाट इट इज टेलिंग, दैट इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट व्हेन यू कनेक्ट अ फुली चार्ज कैपेसिटर, राइट। तो उसके बाद नाउ अब आपके पास थ्योरी आ चुका है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना होगा। द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन इज। तो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा एट स्टेडी स्टेट, जब फाइनल चार्ज मतलब एट स्टेडी स्टेट जब फुली चार्ज हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, राइट, हमने देखा। तो C का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 500 माइक्रो फैराड है, तो 500 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फैराड, और यहाँ पे डाल दो, और वोल्ट का 10 वोल्ट, इसे कैलकुलेट करोगे तो 5 मिली कूलम्ब आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। फॉर सफिशिएंट टाइम द की S1 is closed and S2 is open, now key S2 is closed and S1 is open, what is the final charge on the capacitor। तो जब भी सफिशिएंट टाइम आपको बोले, मतलब कि आपका t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक बात कर रहा है, मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक छोड़ दिया गया, लगाकर छोड़ दिया गया है, राइट। तो क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज जो कैपेसिटर पे था आफ्टर फुली चार्ज, वो डिसिपिएट हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस दैट इज प्रेजेंट देयर, फ्रॉम हियर इट विल कन्वर्ट इट टू हीट एनर्जी, राइट। देन आपका तो यहाँ का आंसर 0 हो जाएगा। देन आपका थर्ड नंबर पे द डायमेंशनल फार्मूला फॉर RC इज। डायमेंशनल फार्मूला फॉर RC हमने देखा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे V/A, और C का वैल्यू पुट करेंगे Q/V, और यहाँ पर हम जब इसे कैंसिल करेंगे, एम्पियर मतलब होता है Q/सेकेंड, चार्ज बाय सेकेंड, तो हम इसे जब कैंसिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस टाइम बच गया, सेकेंड बच गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि डायमेंशन में कुछ नहीं है, बस टाइम है, टाइम का पावर 1 है, बाकी सारे का पावर 0 है, m0 l0 t1 a0, ठीक है। अब आप देखो, अब आप फोर्थ नंबर, द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, S1 is closed and S2 is open, right। The value of the current in the resistor after 5 सेकेंड इज। तो 5 सेकेंड के बाद आपको करंट पूछा है, तो करंट तो कहीं दिया हुआ नहीं था यहाँ पे, राइट, करंट तो कहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको चार्ज कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ था। तो वही चार्ज को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग करंट निकाल लेंगे, एट इंस्टेंटेनियस करंट हमारा निकलेगा। इंस्टेंटेनियस करंट जब हमारे पास निकल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो हम लोग को बस टी का वैल्यू पुट करना है और बाकी हम लोग फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पर मेन चीज़ है कि आप लोग डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, dq/dt आपका यहाँ पे है और q का वैल्यू आपका ये है, ठीक है। हमने डिफ्रेंशिएशन के अंदर डाल दिया, विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। q आपका देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आपका 0 हो जाएगा, और बचा माइनस क्यू ई माइनस का पावर माइनस t/RC, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, q तो कांस्टेंट है, q बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, e माइनस t/RC को चैन रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे माइनस t/RC के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये e माइनस t/RC लिखा जाएगा, और फिर जब आप e माइनस t/RC को डिफरेंशिएट करोगे, e माइनस t/RC को इधर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा -1/RC, ठीक है, चैन रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कैपेसिटर या फिर इलेक्ट्रिक करंट का कोई वो नहीं है। अब उसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पर देखो Q/RC, ये जो RC है और माइनस साइन है, तो माइनस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, और यहाँ पे जो RC है इधर आ जाएगा, तो Q/RC हमने लिख दिया, और ये वाला जो था E का पावर माइनस t/RC, ये तो यहाँ पे था ही, ठीक है। अब आपका V/R हो जाएगा, C का पावर C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो V/R यहाँ पे हो जाएगा पुट करने के बाद E माइनस t/RC, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू I
एट एनी इंस्टेंट टाइम टी। ठीक है, अब जब ऐसे ही जैसे ही आप यहाँ पे सेकेंड 5 डालोगे तो एट इंस्टेंट ऑफ 5 सेकेंड आपको करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें लूप में वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप 5 डालोगे तो आप देखोगे कैलकुलेशन हो जाएगा आपका E-5/10। तो ये 10 कैसा है, आरसी का वैल्यू, आरसी था नीचे में, ये आरसी था, तो आरसी का वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको कितना आएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे देखो -5/10 तो -1/2 हो जाएगा, और 10/20 इंटू 10⁻³ तो 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा E-1/2। इसे जब सॉल्व करोगे तो 1/2 √E और मिली एम्पियर आ जाएगा आपका करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एट, राइट, एट इंस्टेंटेनियस। और उसके बाद देखो आप फोर्थ नंबर सॉल्व करो, द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन द रजिस्टर इज। तो इनिशियल वैल्यू आपका क्या होगा, ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज हुआ है कि कोई स्टेडी स्टेट आपका कैपेसिटर है, फुली चार्ज है और पोटेंशियल उसके बैटरी के इक्वल हो गया है। अब क्या है कि आपने इसको हटा दिया, इसको खोल दिया और इसे बंद कर दिया, इसे क्लोज कर दिया, तो ये सर्किट आपका चलने लगा और ये पूरा सर्किट ऑपरेट करने लगा आपका कैपेसिटर के कारण। तो इस केस में क्या होता है कि ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ऐसा लगेगा कि करंट यहाँ पे पोटेंशियल आपका यही है और करंट आपका पास हो रहा है ना। तो पोटेंशियल आपको ले लेना है वही 10 वोल्ट जो आपका बैटरी का था, और 10 वोल्ट आपको लेकर इसे सॉल्व कर देना है। तो आपका क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर विल बिहेव ए शॉर्ट सर्किट। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या होगा, t इज इक्वल टू आपका इनिशियल टाइम जो 0 है, तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे i इनिशियली क्या हो जाएगा V/R, तो 10/20 इंटू 10⁻³ तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। कैपेसिटर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जो भी है ये सेक्शन, इसका जो कैपेसिटर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको अच्छे से करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको सारे PYQ को एक्सेस करना है तो ये एक पार्ट है इस लेक्चर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एंड आपको पूरा का पूरा PYQ इस चैप्टर का एक्सेस करना है इन सीरीज, तो आपको इसके प्लेलिस्ट में जाना होगा। और प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको क्या लिखना होगा कि चैप्टर का नाम, किसी भी चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो चैप्टर का नाम, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन आदित्य भैया। चैप्टर का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन आदित्य भैया। ओके।